In the words of Gautam Buddha, happiness is a journey, not a destination. Good afternoon to one and all present here. Today, on behalf of Amity University Lucknow campus, I, Jaya Dubey, a BA honors student, feels privileged to extend a very warm welcome to our speaker, Dr. Naveen Pandey sir, Dr. Priyank Singhal sir, all our esteemed guests, dignitaries, faculty members, and all the delegates on the webinar on mental detoxification of youth in the digital world by Amity Center of Excellence for Positivity and Happiness. Amity University Lucknow campus has a dedicated Amity Center of Excellence for Positivity and Happiness aimed at promoting happiness and well-being established in 2019. The vision of ACEPH is to create an ecosystem where happiness thrives at individual, organizational, social, and spiritual levels to enhance well-being and vibrancy in and outside the campus. Making happiness contagious, encourage researcher on happiness and integrate it with public policy. The topic of our webinar is mental detoxification in youth in digital world. The pace in this modern age is not conducive to maintain one's consciousness. Glued to our electronics, we are blind and deaf to the world. Run down by our long work days, we are too exhausted to think and too hurried to feel. The day ends in haze of strained thoughts, numbness, and fatigue, and we rise the next morning only to start the cycle again. In this age of distraction, if you desire to fritter away your life with empty diversions, there is an abundance of gadgets available to aid you. Mental detoxification is no longer a choice, it is a necessity. Physical exercise, listening to music, reading, writing, dancing, these help us in relieving our mind. Now I would like to invite respected Dean Student Welfare and Professor of Psychology of Amity University, Lucknow campus, Dr. Manju Agarwal ma'am. Ma'am is a psychotherapist, a social entrepreneur, and an educationalist with 40 years research, teaching, and industry experience. Ma'am has also been bestowed with LMA Outstanding Women Achiever Award, ICPD Advancement Award, and International Association of Lions Club Women Achiever Award. Ma'am has specialized in positive health and gender psychology. She is the chief architect of the Women's Policy for UP. Ma'am is also an author of 2 psychometric test published papers in reputed national and international conference and journal. Ma'am has delivered more than 100 invite lectures and had constructed 30 webinars. I request ma'am to address the audience. Thank you, Antavya, for your humbling words. Welcome, Dr. Naveen Pandey. We are truly obliged that you are here with us. You are the founder of Yog Sansthan, Prashikshan Sansthan, and you have chosen a beautiful topic of mental detoxification. So we are eagerly waiting for your lecture and maybe some interactive session. And I'm really thankful to Dr. Priyank Singhal, the member of ACEPH. Thank you, Dr. for coordinating with Dr. Naveen Pandey and organizing this very interesting webinar today. I welcome all the members of ACEPH, Dr. Modi, Dr. Kavita Verma, Dr. Priyank, and Dr. Anuradha from different universities, Allahabad University, Agra University, Dubai universities, and many other universities. So we are really grateful for you being a part of this webinar, who have joined it. And I'm really happy that this webinar is definitely going to go far away and spread the message of importance of mental detoxification, because there is a lot of talk about body detoxification. There are a lot of centers
which are operating in the entire world, who are talking about mental detoxification, but there is hardly any center. In fact, I recently contacted one near Delhi, and I did discuss with him, if you are doing the body detoxification, what are you thinking about mental detoxification? And we had a nice talk, but then we both got busy in our own fields and could not take it forward, because I wanted him to associate the mental detoxification with body detoxification, because we know that until unless we detox the body, we can't detox the mind, and until unless we detox the mind, we can't detox the body. And in fact, detoxification of mind is before the detoxification of body. And enlightened Log who are all with us, they know and understand that there are many bodies: thought body, mind body, feeling body, astral body, and actually our diseases and toxins come first in our feeling body, thought body, and later they get manifested in our physical body, which is at a later stage. So if we start detoxing at mental level, I think that stage of detoxification at physical level will be much reduced. So it's extremely important topic, and I think it's high time that people do realize that mind and body are not two things. This duality has to go. It is one, and my mentor used to say that mind is invisible body, which is true. Mind is actually invisible body, and if we start taking care of our mind, the body will be taken care of. I'm suddenly reminded of makeup, and we invest. We are very much aware, conscious of our appearance, our physical appearance. Lot of parlors are there, and we do realize that the actual glow on the skin is from inside, no matter how much makeup is done. But if your inner is sad, if your inner is unhappy, it is very difficult for that, for your face to glow permanently. It may be for a few minutes, even then it will not be genuine and real. So these were some of the objectives also why this Amity Center of positivity and happiness was established, because our founder president, Dr. Ashok K. Chauhan, and our chairperson, Dr. Aseem Chauhan, are extremely committed to behavioral sciences, and they do believe that positivity, positive thinking, positive behavior, mental detoxification are extremely important. So it was established in a few years back, and we have four wings of this center. One is the academic and research wing. One is the students wing, which has a club also. We call, and the club's name is the Ananda Club. Then we have outreach programs, and we also have created happy spaces where anybody can come and relax and release their stress. And I am so happy and thankful to Dr. Priyank and other members who are constantly supporting this endeavor. And this is not a center of amity. This is a center of everyone. This is not at all an amity center. It is just located, but I think it's in this days of technology, it is not even physical location which is important. Today we are all together. We are all talking together. So it's much beyond the boundaries. So thank you very much, and I think Dr. Naveen Pandey will definitely talk about various techniques of detoxification, and I think this is just a beginning. We will continue on mental detoxification, and I definitely want a lot of feedback from our students, because our target group is definitely students, because that's the young
that you really wish to achieve. With these words, I would not take much time, and I would request Dr. Pandey to kindly start the session. Before that, I think I hand it over to Antavya actually. Now I would like to invite respected Wing Commander Dr. Anil Kumar Tiwari sir to address the gathering. Dr. Pandey joined or not? He'll join shortly. We shall proceed further. Okay. Now I would like to cordially invite Honorable Dr. Priyank Singhal sir. Dr. Priyank Singhal is working at Associate Professor in College of Computing Sciences and Information Technology at Dear Thinker Mahavir University, Moradabad, Uttar Pradesh, India. He has been awarded PhD in Computer Applications. He is the CISCO certified instructor and legal main contract for CISCO Networking Academy. He has teaching and research experience of 14+ years. His research include workflow technologies, cloud computing, Internet of Things, computer networks and software engineering, and project management. He has published more than 40 research papers in the international journals and conferences. He has delivered workshops at Dev Sanskriti University, Haridwar on computer networking and UML. I would like to welcome you, sir, and invite you to welcome our speaker. Thank you very much, Antavya. Thank you for the nice introduction. Good afternoon, everyone. I'm really delighted to be the part of this center as a new member. And I feel really honored and privileged to introduce our resource person for today's webinar, Dr. Naveen Pandey. Dr. Naveen Pandey is founder of Sri Ram Yoga Training and Research Society, Uttar Pradesh. And he is currently working as Assistant Professor in Department of Computer Science at Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Haridwar. He is internationally certified yoga trainer and he has acquired ERYT certification from Yoga Alliance, USA. He holds a rich experience of more than 10 years in the field of yoga and computer science, and he has been delivering lectures on yoga and holistic health in many countries, including Dubai, Canada, Kazakhstan, Vietnam, Myanmar, and China. Furthermore, he has been regularly organizing series of international conferences on yoga, yagya, and Ayurveda. Already 3 conferences have been successfully organized, and the 4th one is in coming months of July or June, and the destination will be Singapore. Not only this, Dr. Pandey has earned a number of awards, which includes Young Scientist Award by Vedic Informatics Center of USERC, Dehradun in 2022. He is a gold medalist in State Yoga Championship. He is a gold medalist for Inter-University Yoga Championship. Moreover, he has been awarded Techno Yogi Award by Dev Sanskriti University for multidisciplinary work on computer science, psychology, and yoga. He is a blend of 2-3 fields together: computer science, IT, yoga. And he has been associated with me from past more than 10 years. And he's a very good friend of mine, and how he has been motivated to set up this Sri Ram Yoga Training Research Society, because during his years of study, he felt some sort of pain in his body, like due to long sitting and things like that. Then he was very much motivated that like this, it is not easy to live a very long and healthy, happy life. So motivated towards yoga, he has now come a long way, and so many achievements are to his credit. I am really thankful to you, Dr. Naveen Pandey, for being a resource person for our webinar, and the theme has already been clearly set and discussed by the center director and the other associated members. I would now like to hand over the session to you, sir. Please. Thank you very much, Dr. Priyank Singhal sir, for inviting me and for a nice introduction.
And first of all, I would like to give the thanks to the Center Director, Dr. Manju Agrawalji, Professor Manju Agrawalji, who is the Director, ACEPH, Amity Center of Excellence for Positivity and Happiness. So thank you very much, ma'am, for providing me such a platform to share the ideas related with yoga and for mental peace, for mental health, and for well-being of the society. Along with that, I would like to give the thanks to Dr. Rituji, who is the coordinator of Amity Center of Excellence for Positivity and Happiness, and for organizing this session. And along with that, I would like to again thanks to my dear friends, Dr. Priyank Singalji, who is like a initiator like for this entire program. And every day we were discussing about how to do it and what we need to do, how we can organize these sessions. So because previously it was going to organize on the day of 12th of January, then we have postponed it to this date because of some reason. And now without taking too much time, I would like to start my session if I get the permission to share my presentation on the mental detoxification of youth in digital worlds. I'm audible? Yes, sir. You can share your screen, sir. Okay, so this is the topic, mental detoxification of youth in digital worlds. And the first picture, which I have put it in the front screen, you can look very easily. This is the 5 seats, what the director ma'am was also discussing about it. Like we have not only one body, but we have a different types of body. So according to the yoga, we believe that in the physical scenario, like in the physical existence, we have a very few things. But in subtle words, we have more than 90 to 95% is governed by subtle words, which is not seen. So here you can look in this picture. This is the 5 kosa, that is known as the 5 seats of the body. The first one is the Anandamaya kosa, Annamaya kosa, and which is related with the physical body, because we anno vai mana prana. What we eat, our mind becomes like that. Because your Annamaya kosa is related with your Pranamaya kosa. Okay, the second layer of your body, that is invisible. It's related with the prana, the flow of energy. And the third layer is the Manomaya kosa, that is related with the mental seats or the mind. So how these 3 layers are connected strongly, like from physical body, starting from your eating behaviors, from your diet behaviors, it's going to directly connect to your mind. Okay, so what we eat, our minds becomes like that. And then if your minds becomes like that, it is going to your Vijnanamaya kosa. Like Vijnan is like a wisdom. That is the 4th layer of your body, that is known as the Vijnanamaya kosa, wisdom seeds. And then if all 4 are connected and well established properly, then your 5th layers, that is known as the Anandamaya kosa, the bliss body. So what we are seeking today, we are seeking for the happiness and peace in our life. That is our purpose, and for that the center is also established, positivity and happiness. Okay, if everyone get everyone will be the happy, then you achieve the total health. Like in the Ayurveda says that sam dosa samagnisya samdhatu malakriya prasannatma indriyanam swastha diyate. Like it is
from the Ayurveda. If we have our physical body, our mental body, our prana, our all the 5 sense organs, indriya, if everything is good, then automatically our soul will be happy, and then we get the happiness in the entire life. So this is the purpose of mental detoxification of using digital words. Now I'm coming in the context of today's presentation. I will use the bilingual. I will use English and Hindi both. I will try to present my presentation. So what is the mental detoxification and why it's needed? And digital words and causes of mental illness, symptoms of mental illness, how to overcome, yogic module for mental detoxification, practical experiences, and Atmabodha and Tattvabodh practice, tips and tricks. So these are some content which we will discuss. So in 10 to 15 minutes, we will try to understand the causes, reason, and then in 30 minutes, we'll try to practice more and more to overcome from these problems, because practice is more important. Here you can look. So mental detoxification is the process of clearing and cleansing the negative, unuseful, and unconscious thinking that impact our mental, physical, emotional, and energetic well-being. ये बहुत clear है, आप सभी को पता है कि mental detoxification इसीलिए important है. And this picture is very clearly depicting the scenario. So one side, half side, is like too much negativity or pressure. In this picture you can look, and that harming your brain, harming your well-being. And this side, when everything is harmonized, everything is good, then you can look, the creativity happens, and the color of joy, color of happiness, color of bliss stays being depicted in this picture. Why it's needed? The big question is that why we are organizing this seminar, why we are establishing these kinds of the center, and why everyone is focusing on mental health today. The main thing is very important. If we look to the scenario, ये कुछ statistics हैं जो different research papers से हमने gather किया है. ये दिसंबर 2019 में ये पेपर पब्लिश हुआ. ये एक रिपोर्ट है बेसिकली कि इंडिया में मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस की क्या कंडीशन है. इस पिक्चर को देखकर आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस है, एंड फॉर दैट रीजन वी आर हियर. डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स कि ये कुछ आप देख सकते हैं कि उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गोवा are all are in like a very severe condition. Very serious problem is happening here. We are fortunate, like Uttar Pradesh, Bihar now is safe, but in some other point of view, not in depressive order, but other point of view, we have also the problem here. Anxiety disorder, if we see, is almost in all the states like Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka is in the severe condition. Idiopathic developmental intellectual disabilities, you can look here in the Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh is in severe condition. Conduct disorders ऐसे disorders होते हैं जो हम बहुत aggressive nature है हमारा, छोटी छोटी बात पर हम परेशान हो जा रहे हैं, स्ट्रेस को हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं. बहुत सारी इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हमारे पास आ रही हैं. तो देखा जाए तो इसमें उत्तर प्रदेश एक बहुत ही सीरियस कंडीशन पर है. ये चूंकि रिपोर्ट हमारी पुरानी है, लेकिन अभी नई स्टडीज जो भी आएंगी, रिपोर्ट्स आएंगे, उसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे. तो ये सब चीज़ों को देखने के बाद लगता है कि वाई वी नीड ए मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन. मेंटल इलनेस बढ़ रही है. कुछ और स्टैटिस्टिक्स अगर हम लोग देखें यहाँ पर, प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है, एक वर्ड आता है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स एंड सोमैटोसाइकिक डिसऑर्डर्स. ये कुछ चीजें जो साइकोलॉजी की फील्ड से हैं. साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, दैट मीन्स ऐसे डिसऑर्डर्स जो सबसे पहले आपके माइंड को इफेक्ट करते हैं, ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू एंजाइटी, ड्यू टू एग्रेशन, ड्यू टू एंगर, ड्यू टू डिप्रेशन. और ये इतने हाई लेवल पर पहुंचते हैं कि उसका इफेक्ट आपके फिजिकल बॉडी पर भी दिखने लगता है. दैट दीज काइंड्स ऑफ डिसऑर्डर इज नोन एज साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर.
और आज के टाइम पर इसकी अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं या रिपोर्ट्स देखते हैं तो इंडिया में भी, हम वर्ल्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत अलग अलग देश की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा पूरा फोकस है कि हमारे देश की क्या स्थिति। तो इंडिया में भी इसकी सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो रही है। फैटीग है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, बैक पेन है, एंड हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हमारे सामने काफ़ी आ रही हैं। ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम है। आज के डेट में 90% लोग हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन या अपस्ट्रेस स्टोमक की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है। हेडेक, माइग्रेन की स्टैटिस्टिक्स बढ़ती जा रही हैं। स्किन रैशेस हैं, इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम, ये जितनी भी प्रॉब्लम है इसमें से एक जो अभी कॉमन है वो है डायबिटीज, जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। एवरी टाइम हर व्यक्ति, आप 5 में से 1 व्यक्ति अगर आपको मिलेगा जो इसके बारे में डिस्कस करता हुआ मिलेगा, डायबिटीज। इसका अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो डायबिटीज इन इंडिया, एक प्रिडिक्शन है इसमें कि 2019 में 77 मिलियन पीपल्स विद डायबिटीज, और 2030 का जो आपका प्रिडिक्शन है, मोर देन 100 मिलियन पीपल विद डायबिटीज। इंडिया की बात है ये, ठीक है। तो और 2045 में इसका संख्या और बढ़ती जा रही है, 134.23 मिलियन, एक प्रिडिक्शन है। कहने का मतलब ये है कि ये जो सिनेरियो है, डायबिटीज भी एक साइकोसोमैटिक डिसीज के अंतर्गत आता है। पुराने समय में इसको राजयोग कहा जाता था, राजरोग। ये एक राज रोग हुआ करता था जो केवल राजाओं को हुआ करता था, ये आम जनता के लिए नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी जो लाइफ स्टाइल थी या बहुत सारी उनकी ईटिंग हैबिट्स थी, या जो उनके माइंड में पूरे स्टेट कह लीजिए या उनका पूरा प्रोविंस कह लीजिए या पूरा राज्य कह लीजिए, उसको चलाने का जो स्ट्रेस उनके पास था, इसकी वजह से शायद डायबिटीज होती थी। तो आज के समय में हम लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी हम लोग क्यों डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं? नो डाउट कुछ आपके और सिम्टम्स हो सकते हैं, कुछ और कॉजेज हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉजेज आपकी हैं मेंटल इलनेस, इसकी वजह से मेंटल प्रॉब्लम, इसकी वजह से डायबिटीज आपके फिजिकल बॉडी में सामने आ रही है, ठीक है। यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोगों को मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन की बात आज करनी पड़ रही है। कुछ कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस की अगर हम लोग और बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, लैक ऑफ स्लीप है, टेक्नो स्ट्रेस, ईमेल, फोन, टेक्स्ट। आज जिस पे हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे, इसकी स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे कि ये किस तरीके से हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप स्ट्रेस है, इलनेस एंड इंजरीज है, हैवी वर्कलोड है, फीलिंग क्रिटिसाइज्ड है। देयर आर n numbers of causes for mental illness, लेकिन उसमें से कुछ मेन कॉजेज हैं जिसको हम लोग लेकर फोकस कर सकते हैं और अपनी लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं। एक ऐसी लाइफ जो आपको मिली हुई है जिसकी एंडलेस पॉसिबिलिटीज है, जिसमें इसके माध्यम से हम बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। शायद मेंटल इलनेस की वजह से हम उस पावर को पहचान नहीं पा रहे हैं और अपनी चीज़ों को और बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एक बहुत वैसा टॉपिक है डिजिटल वर्ल्ड, और हम सभी अगर देखें तो हम सभी इससे घिरे हुए हैं। अगर आज हमारा ये वेबिनार भी हो रहा है तो बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल। आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये हेल्पफुल है। हम यहाँ बैठे बैठे बहुत सारा डेटा हमने सर्च कर लिया बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। दिस इज व्हाट हेल्पफुल। तो डिजिटल वर्ल्ड एक तरफ जितना हेल्पफुल है उतना ही ये हमारे लिए आज के समय में प्रॉब्लमेटिक भी हो चुका है। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ आप कह सकते हैं कि हम इसको यूज नहीं करना चाहते हैं। मिस गाइडेंस कह लीजिए, लैक ऑफ नॉलेज कह लीजिए, आप कह सकते हैं कि मैनुअल नहीं मिला हाउ टू यूज प्रॉपरली, ठीक है। हमारे पास एक इसका मैनुअल नहीं है कि हाउ टू लिव द लाइफ प्रॉपर, इसका मैनुअल नहीं है। तो शायद इसीलिए आज हम लोग मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं।
डिजिटल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो ये जितना बेनिफिशियल है, और अगर हम इसको स्मार्टली यूज नहीं करेंगे तो ये उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ये कुछ डेटा आपके सामने हमने प्रेजेंट किया है, डिजिटल वर्ड्स एंड कॉजेस ऑफ मेंटल इलनेस, जिसमें आप देख सकते हैं कि 71% इंक्रीज इन द लाइवलीहुड ऑफ डेवलपिंग सुसाइडल रिस्क फैक्टर। स्मार्टफोन का जो आपका एडिक्शन है ये सुसाइड अटेम्प्ट तक आपको लेके जा रहा है। 55% मोर देन 55% लोग ऐसे हैं जो ड्राइव करते हुए फोन देखते हैं और इट लीड्स टू द एक्सीडेंट, या डेथ हो जाती है या कुछ और प्रॉब्लम में आप फंस जाते हैं। 21% टीनेजर्स जो हैं जो स्मार्टफोन चलाते हुए या ड्राइव कर रहे हैं या बात करते हुए जा रहे हैं, दे आर प्रोन टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। इसी तरीके से 17% ऐसे हैं जो पेरेंट्स हु स्पेंड मोर टाइम विद देयर फोन देन देयर चिल्ड्रन। ये फैमिली इशू क्रिएट कर रहा है। और अगर आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करें अपने लाइफ को तो शायद कहीं हम लोग भी ऐसा तो नहीं कर रहे कि अपने बच्चे को भी मोबाइल फोन पकड़ा दिया है कि वो अपना उसमें टीवी देखेगा, और हम लोग भी अपने मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इन सब चीज़ों में व्यस्त है। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक्स भी हमें बहुत सचेत करती है कि हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि व्हाई वी नीड ए डिटॉक्सिफिकेशन। ये कुछ और स्टैटिस्टिक्स हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं स्मार्टफोन यूजर बिहेवियर्स को लेकर। फील एनेक्सियस व्हेन दे लीव देयर फोन एट होम 87.8%। और अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो यू कैन डू एक्सपेरिमेंट विथ योर ओन सेल्फ। किसी दिन आप एक दिन फोन अपना घर पे छोड़ दीजिए और फिर आप देखिए कि ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग सा है। अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं दैट मीन्स कि हम लोग भी एडिक्टेड हैं स्मार्टफोन से। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और स्टैटिस्टिक्स हैं जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, टीनेज स्मार्टफोन एडिक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि हाउ मच वी आर कनेक्टेड एंड एडिक्टेड विद डिजिटल वर्ल्ड। तो इसके लिए कुछ चीजें और आप अगर देखें एज अ ऑर्गेनाइजर पॉइंट ऑफ व्यू से या एज अ ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो एक स्टैटिस्टिक्स जो हमारे सामने आती है कि 56 मिनट्स पर डे एंड प्रोडक्टिव टाइम वेस्टेड बाय एम्प्लॉयज ऑन देयर स्मार्टफोन एंड दिस इक्वेट टू नियरली 5 आवर्स अ वीक। आपके 5 घंटे एक हफ्ते में वेस्ट हो जा रहे हैं जिसमें कुछ प्रोडक्टिव काम आप कर सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही पॉपुलर टर्म आ गया है नोमोफोबिया। नोमोफोबिया इज वाइड स्प्रेड, जिसमें आपका आप देखिए तो आपका फोन छूट गया या आपके पास फोन नहीं है या किसी ने आपका मोबाइल फोन ले लिया तो आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ चीजें गड़बड़ हो सकती है। तो इसमें सीवियर केसेस में 13% हैं, माइल्ड केसेस में 37% हैं, मॉडरेट केसेस में 50% हैं। तो ये नोमोफोबिया कहीं हमें भी देखना है कि कहीं हम लोग भी इस फोबिया से ग्रसित तो नहीं, सराउंडेड तो नहीं। ठीक है, दैट्स व्हाई वी नीड ए मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन इन डिजिटल वर्ल्ड। कुछ अर्ली सिम्टम्स आते हैं अगर आपको ये चेक करना है कि यू आर मेंटली फिट और नॉट। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मेंटल हेल्थ इलनेस, जिसमें आप खुद से चेक कर सकते हैं कि आपको कहीं कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, आप चेक कर लीजिए। एक्सेसिव फियर और वरीज तो नहीं हो रहा है, छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर आप बहुत बड़ा तो नहीं बना रहे, तिल का ताड़ कहना जिसको हम लोग कहते हैं, छोटी सी बात है उसको बहुत ओवर थिंकिंग करके हम रात भर सो नहीं पाते हैं लाइक। और यही प्रोसेस अगर कंटिन्यूअस चलती रही तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है। कई सारे पेशेंट्स आते हैं, कई सारे लोग आते हैं जो 3-3, 4-4 रात से या 10-10 दिन से उनकी प्रॉपर स्लीप नहीं है, उसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर उन्होंने स्लीपिंग पिल्स लेना स्टार्ट कर दिया
तो फिर उनको हेलुसिनेशन या अलग अलग तरीके के जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वहां तक की कंडीशंस भी आ जाती हैं। तो ये अर्ली सिम्टम्स हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं, फीलिंग सैड विदाउट एनी रीजन, एक्सट्रीम मूड चेंज लाइक मूड स्विंग डिसऑर्डर, ये तो ऑलमोस्ट आजकल काफ़ी लोगों को है। इसको हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि ये बहुत छोटी सी प्रैक्टिस होगी इन सब चीज़ों से। जो अर्ली सिम्टम्स आपके हैं ना, एक्सेसिव फियर्स हैं, एंगर मैनेजमेंट्स हैं, सुसाइडल थिंकिंग है, इनएबिलिटी टू कोप अप विद स्ट्रेस, छोटी सी प्रॉब्लम मान लीजिए आपके वर्क स्पेस में क्रिएट हो जाती है और आप सोचते हैं कि अब जॉब छोड़नी पड़ेगी, या स्टूडेंट है अगर टीचर ने बोल दिया कि आप डेडलाइन के अंदर प्रोजेक्ट सबमिट कर दीजिए, तो कुछ बच्चे बिल्कुल प्रेशर में आ जाते हैं और उनको अलग अलग तरीके से सिम्टम्स आने लगते हैं। तो अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो आप लोग अभी से सचेत हो जाइए कि नाउ वी नीड टू डू समथिंग फॉर अवर लाइफ। ये अर्ली सिम्टम्स हैं, सीवियर कंडीशंस की बात हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस क्या हैं इसके? जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारा यूथ है, सबसे युवा देश हमारा भारत देश है, और अगर ये डिजिटल वर्ल्ड में आ गया और अलग अलग तरीके से गेम्स के चक्कर में और अपना जो एक पढ़ाई का टाइम है उसको छोड़कर कहीं और आप वर्चुअल वर्ल्ड में जा रहे हैं, तो ये वेस्ट हो जाएगी आपकी एनर्जी और आपका जीवन। तो सॉल्यूशन क्या है? फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस, फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस। तो सॉल्यूशन एक बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जिस चीज़ को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं कि मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन फ्रॉम डिजिटल वर्ल्ड्स, तो यहाँ पर एक वर्ड हमने लिखा है एआई। एआई दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिस्कनेक्ट फ्रॉम एआई एंड रिकनेक्ट। हमने यहाँ पर कनेक्ट वर्ड इसलिए नहीं यूज किया कि बाय बर्थ वी ऑलरेडी कनेक्टेड, एंड विद द टाइम फ्रेम ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर और सो मेनी अदर फैक्टर्स वी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम आवर ट्रू सेल्फ. So that's why AI is the artificial intelligence. It's like a virtual digital world, virtual world. आप सभी ने चैट जीपीटी का नाम सुना हो, उसके पास हर तरीके के सॉल्यूशन हैं। आप कुछ भी दीजिए वो सब दे देगा आपको, ठीक है? तो डिस्कनेक्ट फ्रॉम एआई एंड कनेक्ट टू द आई। आई दैट मीन्स सेल्फ, ट्रू सेल्फ। आप अपने आप से कनेक्ट करिए। डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सेल, cell that means mobile phone, cell phone. Disconnect from cell and connect to the self, from cell to self. अगर ये जर्नी स्टार्ट हो जाएगी तो आप समझिए कि आप काफी हद तक मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन के स्टेज पर आ जाएंगे कि आपका माइंड क्लियर होने लगेगा। फ्रॉम गूगल टू गॉड। आज हम लोग एक बड़ा वर्ड यूज करते हैं कि गूगल इज गॉड। नहीं, ऐसा नहीं है। वी नीड टू, कुछ भी सर्च करना हुआ तो हम गूगल पे सर्च करने लगते हैं। हैव यू ट्राइड टू यूनिवर्स सर्च? कभी नहीं सोचा। वी आर बाउंडेड बाय आवर बिहेवियर, वी आर बाउंडेड बाय द डिजिटल वर्ल्ड। अब मैं although I am also belongs from computer science field, so I know the reality कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में आप सभी को ऐसे कैप्चर कर रहा है कि यू डोंट रिमेम्बर योर मोबाइल नंबर। और अगर हम आपको कुछ 2-3 डिजिट्स दे दे कि आप काउंट कर दीजिए, तो शायद आप ढूंढेंगे मोबाइल कहाँ है तो कैलकुलेट करिए। आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं है तो उसके लिए भी आप कंपास ओपन करके देखते हैं कि किस तरफ है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें हम बहुत डिपेंडेंट हो चुके हैं डिजिटल वर्ल्ड पर, और ये हमारे लिए हार्मफुल है। आने वाले टाइम पर हम अपनी खुद की क्रिएटिविटी को लॉस कर रहे हैं। हमारी खुद की जो मेमोरी पावर्स है, 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं। सबसे इवॉल्व स्पीसीज में हम लोग आते हैं, ह्यूमन बीइंग सबसे इवॉल्व है अगर देखा जाए, जिसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात अगर कर लें, बिहेवियरल डेवलपमेंट की बात कर लें, सबसे इवॉल्व हम लोग हैं इस ऑन द अर्थ देखा जाए।
जो सोच सकता है, समझ सकता है, नॉट ओनली फिजिकल, सटल वर्ड्स में भी। सप्त लोकों की अगर हम लोग बात करें, जो ओम भू भुआ स्वाहा जना महा जना तपा सत्यम, 7 लोक जो होते हैं वहां तक की भी हम लोग बात करते हैं। नॉट ओनली वन डायमेंशन, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द 7 डायमेंशन ऑफ द, हम लोग मृत्यु लोक में रहते हैं। तो एक ऐसी विद्या, एक ऐसी टेक्नोलॉजी आप कह लीजिए, या एक ऐसी मैकेनिज्म जो आपको मिली हुई है, वी आर लूजिंग इट ओनली इन द डिजिटल वर्ल्ड। हम एक डिजिटल वर्ल्ड को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, इट्स हेल्पफुल कि आज के समय में हम लोग बैठकर, टेलीपैथी नहीं आती है तो एटलीस्ट टेलीफोन कर सकते हैं, इट्स गुड इन नेचर। हर व्यक्ति साधना नहीं कर सकता है टेलीपैथी की, तो हम टेलीफोन यूज कर सकते हैं। हर आदमी वायुगमन की साधना नहीं कर सकता, तो एरोप्लेन पे हम लोग बैठ के जा सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि आपका माइंड, आपके पास माइंड है जिसकी अनलिमिटेड पावर है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से बैठे बैठे बहुत कुछ सोच सकते हैं और बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं, और भी अनसीन एरियाज जिसको हम लोग कह सकते हैं, अनसीन डायमेंशन में भी हम लोग जा सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ माइंड। यहाँ पर ये जो इमेज आपके सामने दिखाई गई है, 2 पिक्चर हमने रखा है। एक है आपका ये जिसको हम लोग कहते हैं सर्चिंग प्लेटफॉर्म्स। सर्चिंग प्लेटफॉर्म में भी अगर हम लोग देखें कि सरफेस वेब जो है आपका बहुत छोटा सा हिस्सा, जिसमें याहू है, गूगल है और अलग अलग तरीके के सर्च इंजन हैं। फिर उसके नीचे आप अगर देखते हैं तो डीप वेब है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो अभी भी हमारे एक्सेस में नहीं है। फिर उसके नीचे भी और आता है डार्क वेब, जो बहुत ही करीब टोटल मिलाकर देखें तो 96% इंफॉर्मेशन स्टिल वी आर नॉट कनेक्टेड विद इट। तो जिसको हम लोग गूगल कहते हैं कि बहुत है, बहुत सारी चीजें उसके पास हैं, still is very limited, few percent of the things they are covering. In the same way with ourself also, हम अपनी बॉडी की कैपेसिटी कह लीजिए या माइंड की कैपेसिटी को भी बहुत छोटे लेवल पर सोचते हैं, 1% और 2%, जबकि हमारी इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो जब हम फ्रॉम गूगल टू यूनिवर्स कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, फ्रॉम गूगल टू गॉड, तो हमारी पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट हो जाती है। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। आपकी क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा हो सकती है कि आप मान के चलिए, आपको लगेगा कि ये सब थॉट्स हमारे पास कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। कई बार कुछ आंसर गूगल भी नहीं देगा, क्योंकि उसकी भी लिमिटेशन है। लेकिन यहाँ पर अनलिमिटेड चीजें आपके पास हैं कि व्हेन वी ट्राई टू कनेक्ट फ्रॉम आई सेल्फ, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांड। जो आपके पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। लाइक योर ब्रेन इज लाइक अ यूनिवर्स। तो जब आप अपने ब्रेन एक्टिविटीज को, कुछ सम टेक्निक्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसको आप देखकर ये या उसको प्रैक्टिस करके आप इस पावर को डेवलप कर सकते हैं। दैट्स व्हाई डिस्कनेक्ट फ्रॉम डिजिटल वर्ल्ड एंड कनेक्ट टू द रियल सेल्फ। कुछ मॉड्यूल मैं अब यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं। यहाँ तक कि प्रेजेंटेशन में हमने ये देख लिया कि व्हाई मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन इज नीडेड एंड हाउ वी कैन डिटॉक्सिफाई अवर प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मॉड्यूल जो हमारा है वो है यौगिक मॉड्यूल फॉर मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन। क्योंकि हमने आपको फर्स्ट इमेज भी जो दिखाई थी वो है पंचकोश की, जिसमें हमने 5 लेयर्स की बात की थी। इसमें अगर हम लोग इस प्रेजेंटेशन में देखें तो यौगिक मॉड्यूल में सबसे पहला है हमारा सूर्य नमस्कार। मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन की बात है और सूर्य नमस्कार की अगर हम बात यहाँ पर कर रहे हैं तो ये 12 स्टेप्स होते हैं। 12, इसमें 8 आसन है, 8 आसन एंड 12 स्टेप्स, इसको हम लोग कहते हैं सूर्य नमस्कार। इसको हम लोग
आउटडोर प्रैक्टिस में करते हैं, ताकि अर्ली मॉर्निंग जब ये आउटडोर प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार की करते हैं तो इससे हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। तो फिजिकल लेवल पर अगर हम लोग कुछ बात करें तो जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि ये ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है और साथ ही साथ आपकी पॉजिटिव एनर्जी को भी बूस्ट अप करता है, क्योंकि इसमें क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। जब सन रेज हमारे बॉडी पे पड़ती है और जब हम उसके अर्ली मॉर्निंग उठकर जब हम सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस एक बार एज अ बिगिनर या आप कह सकते हैं, या अगर आप प्रैक्टिस कर सके तो 12 राउंड ऑफ सन सैल्यूटेशन, तो इससे आपकी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपकी मेंटल फिटनेस भी स्ट्रांग होगी। क्यों? क्योंकि इट हेल्प्स अस टू सीक्रेट एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स जब ये रिलीज होता है आपकी बॉडी में, हार्मोन्स रिलीज होता है, तो नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट आप कह सकते हैं कि ये नेचुरली आपको जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे जाने लगेगी। तो आप समझिए कि जब हम सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करते हैं, जब हम सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस एवरीडे करना स्टार्ट कर दें तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे आपके फिजिकल बॉडी से गायब हो जाएगी। मेंटल बॉडी आपकी डिटॉक्सिफाई होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका प्राणिक लेवल पर जो एनर्जी फ्लो है वो भी प्रॉपर हो जाएगा। विटामिन डी सिंथेसिस इसको भी ये रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इसलिए हमें सबसे पहले अगर अपने मेंटल माइंड को डिटॉक्सिफाई करना है तो सबसे पहले सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग सनराइज के टाइम पे हमें सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए। अब इसमें एक मॉडिफिकेशन भी है कि इन केस अगर आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास किसी कारण से नहीं कर पाते तो आप एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स राइजिंग सन को वॉच कर सकते हैं। आप एज अ त्राटक अभ्यास कर सकते हैं। आप बैठ जाइए किसी भी आउटडोर, आपके पास अगर कहीं नदी का किनारा है वहाँ बैठ सकते हैं, अपने यार्ड में बैठ सकते हैं, या कहीं ओपन स्पेस में आप बैठ सकते हैं जहाँ पर सनरेज आपकी बॉडी पर पड़े। आप वहाँ बैठिए और बैठकर 5 to 10 मिनट्स कुछ नहीं करना, या तो आप आंखें बंद करके या आंखें खोलकर ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, या कुछ नहीं, आप बस बैठे रहिए और नेचर को महसूस करिए। अगर आपने ये कर लिया तो भी आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। और जब आपकी फिजिकल बॉडी प्रॉपर हो जाए तो आप धीरे धीरे सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। तो एक तो ये सॉल्यूशन आपके लिए है मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, सूर्य नमस्कार का अभ्यास। दूसरी प्रैक्टिस जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम की। अब हम लोग आ चुके हैं प्राणिक लेवल पर। देखिए, अन्नमय कोश से अब हम लोग आ चुके हैं प्राणमय कोश की तरफ, क्योंकि फिजिकल बॉडी को फिट करने के लिए, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए हमने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया एंड डायरेक्टर मैम ने भी आपको थीम सेटिंग के टाइम पे बताया कि योर फिजिकल बॉडी डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर मेंटल बॉडी, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो फिजिकल बॉडी फिट रहेगी तभी आपकी मेंटल बॉडी भी फिट रहेगी, और रिवर्स भी होता है, अगर आपकी मेंटल बॉडी फिट रहेगी तो आपकी फिजिकल बॉडी होगी। तो हम लोग योग की फील्ड में कुछ चीज़ें ऐसी बताते हैं जिसमें, जो आपने सुना होगा, जिसको आप लोग को थोड़ा मिरेकल टाइप से लगता है, कि कुछ योगिक प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जिसको करके आपको ये पावर आ जाती है कि आप फिजिकल बॉडी को देखकर आने वाले फ्यूचरिस्टिक में क्या प्रॉब्लम होने वाली है इनके साथ में, वो भी दिख जाता है, जो एट प्रेजेंट आपके फिजिकल बॉडी में नहीं है। लेकिन वो जो प्राणिक फ्लो है, जो ऑरा है, उसको भी देखकर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब आपके एनर्जी लेवल में जब चेंजेस आने लगते हैं, ऑरा बदल जाता है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आप देख सकते हैं, तो पहले ही आप उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि रिवर्स प्रोसेस भी होती है। ठीक है, फिजिकल टू मेंटल एंड मेंटल टू फिजिकल भी होता है। ठीक है, तो सेकंड प्रैक्टिस है नाड़ी शोधन प्राणायाम की।
पंच प्राणों की बात कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। ठीक है, 5 प्राण होते हैं हमारे बॉडी में जो विजिबल नहीं है। और विजिबल नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, और वो hमारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी फंक्शन, जैसे अपान वायु। अपान वायु रेगुलेट्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अपान वायु रेगुलेट करती है। इसी तरीके के आप मान के चलिए कि प्राण वायु है, तो प्राण वायु आपके लंग्स, हार्ट, लीवर, इन सारे ऑर्गन्स को भी रेगुलेट करती है। और जब इन पंच प्राणों में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आपकी बॉडी में कुछ डिसबैलेंस क्रिएट होगा, और डिसबैलेंस होने की वजह से आपको मेंटली या फिजिकली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन में प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग थोड़ा सा, मैं आपको पहले चीजें बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसका अभ्यास भी करेंगे। सूर्य नमस्कार का अभ्यास तो आप लोग अपने घर पे कर सकते हैं, इमेज शेयर कर दूंगा। प्राणायाम का अभ्यास अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, और जिसको हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं, इसका बेनिफिट ये है कि ये आपके बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करके रखता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से आपको जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम आ जाती है, जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आ जाती है, या ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम लॉन्ग टाइम पे आती है आपको, ये सब दूर होने लगती है धीरे धीरे। आपकी चूंकि जो 72,000 नाड़ी, दैट इज नोन एज एस्ट्रल ट्यूब्स, हमारे बॉडी में होती हैं, जो दिखती नहीं है, तो 72,000 जो एस्ट्रल ट्यूब्स हैं, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने देखा ध्यान के माध्यम से, वो गूगल में नहीं मिलता है, उसको उन्होंने ध्यान के माध्यम से देखा। उन्होंने यूनिवर्सल सर्च किया, कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट किया, और कनेक्ट करके उन्होंने ये देखा कि ये जिस तरीके से आपके फिजिकल बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की आप कह लीजिए वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, पूरा एक कनेक्शन पूरे बॉडी में फैला हुआ है, वैसे ही आपके जो सटल बॉडी, जिसको हम लोग सूक्ष्म शरीर कहते हैं, सूक्ष्म शरीर में भी ऐसे ही ट्यूब्स फैली हुई है, जिसको नाम दिया गया हिंदी में नाड़ी, जिसको हम लोग कहते हैं नाड़ी। और फ्रॉम देयर लाइक नाड़ी शोधन, शोधन दैट मीन्स क्लींजिंग। जब हम उस एस्ट्रल ट्यूब को क्लीन करने की बात करते हैं तो वो नाड़ी शोधन प्राणायाम कहलाता है। जब हमारा ये एस्ट्रल ट्यूब क्लीन हो जाएगा, हमारा जो नाड़ियां हैं, जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, अगर ये क्लीन हो जाएंगी तो हमारी ये जो मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस है, और इवन एज वेल एज फिजिकल प्रॉब्लम भी हमारी धीरे धीरे सॉल्व आउट हो जाएगी, 100% सॉल्व आउट हो जाएगी। इट टेक्स टाइम, टाइम लगेगा लेकिन सॉल्व आउट हो जाएगी। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम इसलिए हम लोग करते हैं। फिजिकल बॉडी में अगर हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, थोड़ा इसको साइंटिफिकली कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं। एक होता है हमारा लेफ्ट ब्रेन, एक होता है हमारा राइट ब्रेन। ठीक है, और ये क्रॉस में कनेक्टेड होते हैं, क्रॉस कनेक्शन होता है। ठीक है, तो लेफ्ट ब्रेन अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा आपका एनालिटिकल माइंड होता है। यहाँ पर हमने इसीलिए पिक्चर लगा रखी है कि लेफ्ट ब्रेन इज रिलेटेड विद एनालिसिस, मैथमेटिक्स, स्टडी, या कुछ इस तरीके की, जहां पर आपको एनालिसिस करनी है, ट्रिकी चीजें होंगी, वो एनालिटिकल माइंड होगा, वो लेफ्ट ब्रेन होगा, एंड दैट इज कनेक्टेड विथ योर राइट नोस्ट्रिल। तो राइट नोस्ट्रिल इज कनेक्टेड विथ लेफ्ट ब्रेन। और ऐसे ही आपका जो आपका राइट ब्रेन जिसको हम लोग कहते हैं कि क्रिएटिव ब्रेन होता है, आर्टिस्टिक ब्रेन होता है, जिसमें कुछ आर्टिस्टिक जैसे म्यूजिक है, आर्ट है, कुछ भी चीज करेंगे तो बहुत ही आर्टिस्टिक वे में हम लोग करते हैं। तो योर राइट ब्रेन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर लेफ्ट नोस्ट्रिल। ठीक है, आप देखिए, तो एक होता है लेफ्ट नोस्ट्रिल, एक होता है राइट नोस्ट्रिल। तो जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो ये दोनों ही ब्रेन को एक्टिवेट करता है। हम वन साइडेड डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाते, हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। हमारा राइट ब्रेन भी एक्टिव होता है और
लेफ्ट ब्रेन भी एक्टिव होता है। हम आर्टिस्टिक भी होते हैं और एनालिटिकल भी होते हैं, बैलेंस। योग यही कहता है कि समत्वम योग उच्यते, समभाव। सुख है दुख है तो बैलेंस बना लीजिए, समभाव रहिए, ठीक है। बैड सिचुएशन है, गुड सिचुएशन है तो भी समभाव रखिए, इक्वल। ऐसा नहीं कि अगर बैड सिचुएशन आ गई तो हम डिप्रेशन में चले गए और बहुत अच्छा अचीवमेंट हो गया तो हम बिल्कुल ऑन द 9th क्लाउड चले गए, उसमें क्या मिस्टेक्स करते हैं पता नहीं चलता। तो इसलिए योगिक लाइफ स्टाइल या योगिक मॉडल कहता है कि मेक द बैलेंस, और बैलेंस आएगा देन हार्मनी और सारी चीजें अपने आप आने लगेंगी। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमें काफी बेनिफिट मिलता है। इसको कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल टेक्निक है नाड़ी शोधन करने के लिए। राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है, राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है कुछ इस तरीके से, और इनहेल करना है लेफ्ट नोस्ट्रिल से। आप इनहेल करेंगे इस तरीके से और थोड़ी देर रोक कर रखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं इनर रिटेंशन। उसके बाद आप लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और राइट नोस्ट्रिल ओपन करके एक्सहेल करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से थोड़ी देर एक्सहेल कर रिटेन करेंगे एंड देन अगेन इनहेल फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल, inner retention, and then exhale from left nostril. This is also known as alternative breathing. Left nostril से inhale, retain, and then exhale from the right nostril and retain, and again inhale from the right nostril, retain, and exhale from the left nostril. ठीक है। इससे बेनिफिट क्या हुआ? एक बार आपने लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट किया, एक बार आपने राइट ब्रेन को एक्टिवेट किया, फिर एक बार आपने राइट ब्रेन को एक्टिवेट किया, फिर आपने लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट किया। क्लियर हो गया नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसको कितनी बार करना है? कम से कम 10 मिनट। 10 मिनट आप बैठकर किसी भी टाइम पे, वैसे मॉर्निंग का टाइम जो होता है वो बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको प्राणिक एनर्जी ज्यादा मिलती है, ठीक है। सुबह उठकर हम नाड़ी शोधन प्राणायाम 5 से 10 मिनट अभ्यास कर सकते हैं, और इसके लिए किसी प्रिकॉशंस की जरूरत अभी नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि ये बॉडी को बैलेंस करता है, टेम्परेचर को बैलेंस कर देता है। अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव हीट हो रही है तो उसको नॉर्मलाइज कर देगा, बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है तो उसको भी नॉर्मलाइज कर देगा। ये बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट करता है नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। और जैसे कि हमने बताया कि 72,000 नाड़ी अगर आपकी क्लीन होने लगेगी तो आपको आपकी बॉडी में एक हल्कापन आने लगेगा, बॉडी लाइट फील करने लगेगी, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये जितने भी प्रॉब्लम हैं माइंड से रिलेटेड, चाहे वो स्ट्रेस हो या एंजाइटी हो या मूड स्विंग डिसऑर्डर्स हो या जो भी अलग अलग तरीके की चीजें हैं, वो सब स्लोली गायब हो जाएगी। 1 हफ्ते की प्रैक्टिस अगर आपने केवल रेगुलर मान के चलिए 1 हफ्ते भी अगर आपने कर लिया, देन यू विल सी द रिजल्ट। 1 हफ्ते के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, केवल और केवल नाड़ी शोधन प्राणायाम से। इसके साथ में एक और चीजें जुड़ती हैं जो प्राणायाम है, मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो है भ्रामरी प्राणायाम, जिसको हम लोग कहते हैं हमिंग बी। भ्रामरी इज कम फ्रॉम भ्रमर, भ्रमर दैट मीन्स हनी बी। आपने कभी सुना होगा कि जब मधुमक्खी आवाज करती है तो एक हमिंग साउंड क्रिएट होता है, हल्का सा वाइब्रेशन। तो वैसे ही साउंड हम लोग भी क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। और इसका जो बेनिफिट है भ्रामरी प्राणायाम का, एक तो ये क्विक रिलैक्सेशन के लिए यूज किया जाता है। आपको किसी भी तरीके की टेंशन है, आप तुरंत
बैठिए किसी भी प्लेस पर, किसी भी टाइम पर, टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप कहीं भी बैठकर आंखें बंद करके, आपने जैसे इस पिक्चर में देखा है कि सन्मुखी मुद्रा के साथ में, सन्मुखी मुद्रा का मतलब होता है कमिंग टूवर्ड्स सेल्फ, ट्रू सेल्फ, सन्मुख, अपने तरफ मुड़िए। 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे। 5 सेंस ऑर्गन्स का काम है बाहर की तरफ देखना। आंखें कहाँ देखती हैं? बाहर की तरफ। कान कहाँ से क्या सुन रहे हैं? बाहर की आवाज को सुन रहे हैं। स्मेल, नोज, बाहर से जो स्मेल आ रही है उसको हम सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं। इसी तरीके से जो टंग है, जो आपके एक सेंस ऑर्गन है, टेस्ट, बाहर से जो चीजें आ रही हैं उसको टेस्ट कर रहे हैं। स्किन है, बाहर के सेंसेशंस को फील कर रही है। दैट मीन्स 5 सेंस ऑर्गन्स आपके आउटर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, और आउटर वर्ल्ड की तरफ जाने की वजह से ये हमारे पूरी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग गवर्न करते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आप एक ऐसे घोड़े पर सवार हो गए, एक ऐसे रथ पर सवार हो गए हैं जिसमें लगाम आपके हाथ में नहीं है, उन 5 घोड़ों के हाथ में है, जिनका मन कहाँ जहाँ होता है वहीं चले जाते हैं। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी कहाँ जाने वाली है। आपने लगाम थामी नहीं है और उन घोड़ों को बोला है ठीक है आपको जहां ले जाना हो ले जाओ। तो दीज 5 हॉर्सेस इज व्हाट, ये जो 5 घोड़े हैं, दीज आर योर 5 सेंस ऑर्गन्स। आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, टंग एंड स्किन। किसी का मन होता है रात 12 बजे तक मूवी देखने का, तो वो आंखें देखती हैं। टेस्ट की वजह से हम इतना खा लेते हैं कि ओवर ईटिंग हो जाती है। वो फैट बढ़े या इंडाइजेशन हो जाए, इससे मतलब नहीं है। नेगेटिव नेगेटिव चीजें सुनना हम लोगों को बहुत पसंद हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं विटामिन एन। एवरी मॉर्निंग वी स्टार्ट फ्रॉम विटामिन एन डिस्कसिंग अबाउट अदर्स। तो इसलिए भ्रामरी प्राणायाम ये कहता है कि सन्मुखी मुद्रा लगाइए और अपने बारे में सोचिए। ट्राई टू रियलाइज योर ओन ट्रू सेल्फ विच हैज इमेंस पावर। बहुत कुछ है आपके पास जिससे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, एवरी सॉल्यूशंस, लाइक एवरी प्रॉब्लम हैव सॉल्यूशन विद इन यू। आपके पास है, हर समस्या का समाधान आपके पास है। बस आप अपने आप से पहले कनेक्ट तो होइए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से भी मिलने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से कनेक्ट हो जाइए। और कनेक्ट होने के लिए ही ये सारी प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। जितना हमारा माइंड क्लियर होगा उतनी ही चीजें हमारी बेहतर होती जाएंगी। ऑल द सुपर नेचुरल पावर्स विल ऑटोमेटिकली कम टू योर लाइफ। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। पतंजलि योग सूत्र में एक श्लोक आता है, तदा स्वरूपे अवस्थानम, तदा दष्टु स्वरूपे अवस्थानम। When your mind is clear like a clear water, stabilized, बिल्कुल स्थिर जल जिसको कहते हैं कि जल भरा हुआ है, बिल्कुल स्थिर है, कहीं कोई उसमें मोशन नहीं है, तो आप उसमें अपने फेस को देख सकते हैं। तो वैसे ही आप, जब आपका माइंड बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो आप अपने ट्रू सेल्फ को रियलाइज कर लेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम करने से बेसिकली सन्मुखी मुद्रा के साथ में आपको इस तरीके की चीजें मिलने लगती है, और फिजिकली तो आपको बेनिफिट हो ही रहा है। अगर हम लोग यहाँ बात करें कि पीनियल ग्लैंड्स एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स, फिजिकल लेवल पर अगर हम लोग बात करें साइंटिफिकली, तो भ्रामरी प्राणायाम एक्टिवेट्स, स्टिमुलेट्स योर पीनियल ग्लैंड्स एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स। और ये दोनों ग्लैंड्स ऐसी हैं जो आपके पूरे के पूरे स्लीप पैटर्न और पूरे हॉर्मोन्स को गवर्न करती हैं। आप सभी ने नाम सुना होगा मेलाटोनिन हॉर्मोन्स। मेलाटोनिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपके पूरे स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। तो इंसोम्निया जैसी जो प्रॉब्लम आज के टाइम पे हो रही है, अगर हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो ये धीरे धीरे दूर हो जाएगी। जो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से जितनी भी प्रॉब्लम आज के डेट में हो रही हैं, वो सब भी आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। जैसे थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ रही है,
स्पेशली फीमेल्स में थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से या तो हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है या हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है, जिसकी वजह से या तो वेट बढ़ जाता है या तो हम सूखने लगते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इसलिए हम लोग को भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। ये कुछ बेनिफिट्स हैं, ये स्ट्रेस, बेटर स्लीप, पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हार्ट ब्लॉकेज, डीप स्लीप, इन सब चीजों को ही रेगुलेट करता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जिसमें नेचुरल साउंड्स का मेडिटेशन अगर हम लोग करेंगे, जैसे नेचर वॉक कर लिया, गंगा के किनारे बैठ गए, या किसी हम स्पिरिचुअल म्यूजिक को लगाकर काम कर रहे हैं। ठीक है, इससे भी आपको मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन होगा। तो ये कुछ चीजें हमने आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में बता दी हैं। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास अभी 20 मिनट्स हैं सर, प्रियांक जी। Yes, sir. You can take another 10 minutes because might be there can be some questions from the participants Okay. that we can take. ओके 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 सर, थैंक यू। तो हम लोग अब प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट करते हैं। तभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाइए, और हम लोग यहाँ पर 2 प्रैक्टिस परफॉर्म करेंगे। प्रैक्टिस इसलिए ताकि आपके मन में कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछें। तो हम लोग सबसे पहले 5 मिनट्स की प्रैक्टिस करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम की। नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, देन 5 मिनट्स प्रैक्टिस हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम की। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे, और चूंकि हम लोग पिछले 45 मिनट से, या आप मान के चलिए कि 1 आवर से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा बैठे बैठे ही हम लोग ताड़ासन कर लेंगे, थोड़ा स्ट्रेच आउट करेंगे, और कुछ फिजिकल मूवमेंट्स इस तरीके से फिंगर्स को कर लेंगे, देन ताकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरीके से फिंगर्स को जोड़ेंगे, दोनों फिंगर्स को जोड़ेंगे। ये मैं पीपीटी बंद कर देता हूँ यहाँ से जी। इस तरीके से फिंगर्स को कनेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, एंड देन इनहेल करते हुए, देखिए मेन थिंग इज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ योर बॉडी मूवमेंट्स विद ब्रीदिंग, ये आप जरूर करिएगा। आप यहाँ पर रखते हैं, देन स्लोली स्लोली इनहेल एंड स्ट्रेच अपवर्ड डायरेक्शन, स्ट्रेच अपवर्ड डायरेक्शन, लुक अपवर्ड डायरेक्शन, थोड़ा सा कर्व लेंगे, देन स्लोली स्लोली एक्सेल एंड कम्स डाउन, bring your hands down, and then slowly inhale, stretch out, and then exhale down, inhale and exhale। ठीक है, इसी तरीके से चेयर, चूंकि अगर हम लोग चेयर पर बैठे हुए हैं तो चेयर पे बैठे बैठे ही थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं। 1, exhale, while twisting, exhale, inhale coming in the center, and then exhale, inhale coming in the center, and then exhale, twist। 3 to 4 times हम इसको कर सकते हैं। देन आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज, शांत होकर बैठ जाएंगे। ट्राई टू ऑब्जर्व योर ब्रीथ, ट्राई टू ऑब्जर्व योर ब्रीथ। सारी जगह से मन को हटाकर जो श्वास एंड प्रश्वास, इनहेल एंड एक्सहेल, द कंटिन्यूअस प्रोसेस हैपनिंग फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ, ऑब्जर्व इट। Disconnect from the outer world and try to connect to yourself. And when you inhale, try to feel that the little bit cold air is inside. Try to feel the coldness to your nose tip. While you are exhaling, try to feel that the little bit hot air is going outside. Try to feel this temperature. If
will increase the awareness. This practice will increase awareness. Before starting the pranayam, always practice 1 minute this process, awareness, to get the maximum benefit. Okay, and after that, open your eyes and look here. You can see this is known as the Pranav Mudra. In this way, like these two fingers, index finger and middle finger, touch to the root of the thumb. In this way, this is known as the Pranav Mudra. Mudra also have a very scientific significance and benefits in our body. We will explain in later. So many things are there. And then try to close right nostril first, and then inhale from the left. Without making noise, very simply inhale, and as much as you can hold as per your capacity, and then exhale from the right nostril. And again inhale from the right nostril, close both nostrils, and then exhale from left. It might possible you feel trouble with inhale or exhale with maybe from right or left, but with the practice it will be good. Okay, so from left again, inhale, close both nostrils, and exhale. Now third round again, start. Inhale, hold, and exhale. Keep continue this process. Keep continue. At least. डॉक्टर साहब राइट को क्लोज किया, राइट को क्लोज किया, लेफ्ट से ब्रीद इन किया, then close both and This is breathe from left. yes. Okay. This is like inhale from the left. Inhale. From the left and release from the left. No, inhale from the left and then retain. This Hmm. is called Kumbhak. Then exhale from right. Nadi Shodhan. Yes. Nadi Nadi Shodhan Shodhan. with this mudra. Yeah, with this Pranav Mudra. Pranam mudra. Yes. Like Okay. it's very easy to understand, like alternate. Left, if we inhale from left, then exhale from right. ठीक है. And if we inhale from right, then exhale from left. So alternate breathing. Okay. So 5 minutes if we do every day, then all the benefit which I explained, you will get it. Okay. Now we will practice Bhramari Pranayam with Sanmukhi Mudra. Bhramari Pranayam with Sanmukhi Mudra. So these two fingers you can put very gently, don't give too much pressure on the eyes. Very gently you have to put it here. Okay. And then under the nose, and then one is here. And by this thumb, you can close your ear. So my ear is closed by this. Okay. So inhale, slowly inhale, and create the sound, humming sound. And again, same process, you can repeat it. Inhale again and humming sound.
Okay, so this is what the Bhramari Pranayam, you can do it at least 5 to 10 rounds, you can practice it. Okay, so if you practice right now 5 rounds, it will take approximate 2 to 3 minutes. भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, एनी टाइम। ये आपकी इनर क्रिएटिविटी को डेवलप करेगा। अगर हम लोग स्पिरिचुअल बेनिफिट्स की बात करें, फिजिकल बेनिफिट्स ऑलरेडी हमने अभी एक्सप्लेन किया, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स की बात करें तो ये आपके अंदर क्रिएटिविटी, जो आपका आज्ञा चक्र है, इसको एक्टिवेट करता है। तो कई बार आपको इंट्यूशंस की चीजें भी आपको मिलने लगेगी, इंट्यूटिव पावर आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, और कई सारी चीजें जो सुपर नेचुरल चीजें होती हैं वो भी आपको इजीली मिल जाएगी जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। और ये बताइए, कोई नॉट वेल बीमार है या लेटा हुआ है तो लेटे हुए स्थिति में किया जा सकता है कि नहीं? कंप्लीटली अगर लेटा हुआ है तो नहीं हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आप किसी सहारे से थोड़ा सा सहारा लेकर आप स्थिति में कर सकते हैं। ओके, जी जी जी। तो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हम लोग यहाँ पर 3 बार आप लोग एक बार करके देख लीजिए। 3 टाइम्स प्रैक्टिस योर भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से आपको क्विक रिलैक्सेशन मिलेगा और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसको मिनिमम हम लोग को एटलीस्ट 5 to 10 राउंड्स हम एज अ बिगिनर स्टार्ट कर सकते हैं, एज अ बिगिनर, मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में। और चूंकि अगर हम लोग योगिक टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्राणायाम है जो कि मिड नाइट सजेस्ट किया गया है। या तो आप मिड नाइट में कर सकते हैं या तो अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एज अ जो साधक होते हैं, जो उनकी प्रैक्टिस लंबे समय से चली आ रही हैं, उनके लिए ये सजेशंस बताए गए हैं। और चूंकि हम लोग तो गृहस्थ हैं और हम लोगों के साथ में जॉब रूटीन्स भी जुड़ा हुआ है और बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें तो केवल फिजिकल और थोड़ा सा मेंटल बेनिफिट मिल जाए, उसके लिए हम लोग किसी भी समय इसको कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट एक प्रैक्टिस हम लोग और करेंगे। खाना खाने का भी प्रावधान नहीं है, खाना खाने के बाद भी कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, खाना खाने के बाद भी हम लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम का। और नाड़ी शोधन के साथ में है कि अगर आप एम्प्टी स्टमक करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, चूंकि वो आपके जो ब्लड सर्कुलेशन हैं और आपके जो बॉडी का टेम्परेचर है, इन सब चीजों को भी वो गवर्न करता है। तो इसलिए चूंकि खाने के बाद तो थोड़ा सा आपकी एनर्जी डाउन रहती है, तो इसलिए अगर आप करेंगे तो आपका इंडाइजेशन प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इसलिए हम लोगों को प्राणायाम मॉर्निंग में ही हम लोग एम्प्टी स्टमक सजेस्ट करते हैं। और भ्रामरी प्राणायाम चूंकि आपके माइंड से रिलेटेड एक्टिविटी है आपके, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, हम लोग इसको कर सकते हैं। बच्चों को भी हम लोग इसको करा सकते हैं क्योंकि बच्चों को अगर हम कराएंगे तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है, मेमोरी पावर्स हमारी इंक्रीज होती है
और एक काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब हम लोग बात करते हैं 100 बिलियन न्यूरॉन्स की जो कि हमारे ब्रेन में है, और उसमें आता है एक न्यूरो कनेक्शन। तो हमारे न्यूरो कनेक्शंस जितने बनते हैं, हमारी थिंकिंग पावर और डिसीजन मेकिंग पावर और हमारी मेमोरी पावर इंक्रीज होती है। और अगर यही न्यूरो कनेक्शंस जितने आपके कम होते चले जाएंगे, उतनी ही आप अल्जाइमर डिसीज की तरफ जाने लगेंगे, कि आपको मेमोरी लॉस होने लगेगा, डिसीजन प्रॉपर नहीं होगा और इसकी वजह से फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपके जो न्यूरो कनेक्शंस हैं वो स्ट्रांग होने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार हो गया। जब आप प्राणायाम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर की जो न्यूरो कनेक्शंस एस्टेब्लिश होंगे, और जो आपकी इंटरनल नेटवर्किंग है, अगर हम लोग बॉडी के नेटवर्क की बात करें कि जो सिग्नल पास होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अनदर न्यूरॉन्स, उसकी जो स्पीड है, सिग्नल ट्रांसमिशन स्पीड भी हमारी फास्ट होती है। तो इसलिए आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है भ्रामरी प्राणायाम करने से। तो इसलिए हम लोग अगर भ्रामरी प्राणायाम बच्चों को भी कराएं तो उनके अंदर काफी अच्छे डेवलपमेंट हो सकते हैं। साथ में जी प्रियांक जी। Sir, all the insights that you have told to all the participants, they are really interesting. And obviously, practice is really important. Just by knowing will not help. If we practice, then we can realize the benefits and the result. So, keeping pace with the time, I would like to welcome the participants for any sort of queries and questions if they might have, and they would like to know some of their specific answers. Anybody can ask question. Mr. Palanki, if you can give unmute the participants and give them access to unmute themselves, it will be great. Okay, sure. जी, Ask questions to learn. That is the best way. Yes, I have asked, ma'am. We are asking so many. Yes, ma'am. Anything you want to ask? to regulate the thyroid glands. Okay, one question from Dr. Pankaj ji. सब लोग मत अनम्यूट करिए, जिनको बोलना है केवल वो अनम्यूट करें अपने को, अदरवाइज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। Yes, For there is the regulation of thyroid, we can do the Ujjayi pranayam. Ujjayi is a very best technique, you can say, and Ujjayi pranayam also you can do in any situations, and it's very effective, like snoring sound creation. In this process, you can sit down or in the lie down position, or during the when you are going to the bed for sleep. In that time also you can do Ujjayi. You have to just contract your throat area. This is like this area, like this, and then try to inhale. Then automatically snoring sounds will create with some noise, like then you can exhale from mouth or you can exhale from nose. Okay, so this is what the Ujjayi pranayam practice. At least minimum 10 minutes. Minimum 10 minutes you have to practice. It's a minimum. Maximum it can be 30 minutes practice. Not more than that. Ujjayi pranayam. If anybody have a thyroid problem, like any kinds of thyroid, it will balance it with regular practice of Ujjayi. Along with that, you can do Bhramari pranayam also, because it's regulates your pineal and pituitary. Pituitary is like master glands who governs all other glands. So that's why Bhramari pranayam you can include. Along with that,
You can practice some physical asanas like a Surya Namaskar if you are able to do it. Otherwise, with some modifications, simple practices you can do for the thyroid. Bhujangasana is very good. Shashankasana, rabbit pose is good. Okay. If there is any more query or question from the participants, we can take 2 more questions as per the time limit. Please, you are welcome to ask. Unmute yourself and just ask a question, or you can text your question in the chat box. हेलो Yes, please. सर मुझे ये क्वेश्चन करना था, ये अस्थमा के पेशेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा जो हम लोग डिटॉक्स करते हैं, ये योगा का सर ने बिल्कुल। स्टेप्स बताए हैं, इट इज बेनिफिशियल जी। फॉर द अस्थमा पेशेंट्स आल्सो? बिल्कुल नेहा जी, एक्चुअली हम लोग जब सोमैटिक डिसीजेस की बात कर रहे थे, उसमें हमने आपको बताया था कि मेंटल प्रॉब्लम की वजह से फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, तो अस्थमा भी ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े सिम्टम्स उधर से आते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं और यौगिक प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं लाइफ में, तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि अस्थमा में भी काफी बेनिफिट आपको मिलेगा। बट सर आपने इसमें जैसे एक प्रक्रिया बताई थी कि उसमें सांस रोकना जी। पड़ता है, बट दैट नहीं। फील दैट बस एक मॉडिफिकेशन आपको इसमें रिक्वायरमेंट है कि आपको होल्ड नहीं करना है, क्योंकि अस्थमैटिक पेशेंट होल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, ओके 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 तो आपको विदाउट होल्डिंग या विदाउट रिटेंशन आप अगर करेंगे, सिंपल इनहेल देन एक्सेल, एक्सेल, और उसके लिए भी आपको थोड़ा सा प्री प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। प्री प्रैक्टिसेस आप करेंगे, अपने बॉडी को ट्रेन करेंगे, ब्रीदिंग ट्रेनिंग होगी, तो आपको निश्चित तौर पर इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके ओके सर, थैंक यू जी। सो मच। क्योंकि जो ब्लॉकेज होते हैं अस्थमा के, जो भी चीजें हैं, आपको अगर आप लोग उस फील्ड से हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि ब्लॉकेज हो जाती हैं, या आपके जो एल्वोलाइज हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, या जो पैसेज एयर पैसेज हैं वो सारी चीजें ब्लॉक होने लगती हैं। इस वजह से जो समस्याएं हैं किसी भी रीजन से, तो कहीं ना कहीं जब एयर पैसेज ओपन होगा, एल्वोलाइज एक्टिव हो जाएंगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 मंथ्स का टाइम हम लोग लेते हैं कि आपको क्रॉनिक अगर डिसीज है तो टाइम लगता है, और नॉर्मल अगर है तो आपको रिजल्ट विदिन 1 वीक ओके दिखता है। ओके ओके सर, थैंक यू। You can ask a question, Ms. Kavita. You have some question. गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन ये था सर, क्या प्रेगनेंसी पीरियड में भी ये नाड़ी शोधन और भ्रामरी कर सकते हैं हम लोग? प्रेगनेंसी पीरियड में भी आप नाड़ी शोधन और भ्रामरी बिल्कुल कर सकते हैं, बस एक चीज का ध्यान रखना है, कुंभक नहीं लगाना है। जो रिटेंशन है, ब्रीथ रिटेंशन, वो आपको नहीं करना है। कि और अगर आप नाड़ी शोधन करते हैं तो ये तो आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, और इस पे काफ़ी रिसर्चेज भी चल रही हैं गर्भ संस्कार पर। गर्भोत्सव संस्कार पूरा का पूरा हम लोग कराते हैं, और भ्रामरी तो मैंडेटरी होता है, क्योंकि भ्रामरी से बच्चे का जो माइंड डेवलपमेंट होता है बहुत अच्छा होता है। हाँ आपका दिया हुआ चॉकलेट हम सबने खाया था हाँ, वैसे। पता है मुझे, सबने खाया था। अभी मैं यही हेलो? बोलने वाला। जी। सर ये Thank you. बच्चों के, Yes. अच्छा सॉरी सर, Yes, please continue. बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल होता है? क्या चीज? हेलो जी हेलो जी सर। नेहा जी बताइए। जी सर, मैं क्या पूछ रही थी, ये बच्चों के लिए मतलब कि क्या, जो हम लोग बच्चे होते हैं 5 साल के ऊपर के, जिनके लिए देखिए तो इनके लिए भी बेनिफिशियल होता है? देखिए बिल्कुल, इसमें बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हम लोग 8 साल के ऊपर जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग आसन के लिए रिकमेंड करते हैं। आसन, फिजिकल प्रैक्टिस, जैसे सूर्य नमस्कार और ये सब फोर्सफुली अगर हमें कराना है तो। बच्चा खुद से अपना कर रहा है तो उसको करने दीजिए, देख के कर रहा है करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बच्चा भ्रामरी प्राणायाम सीख गया, ठीक है, तो उसका जो एक कंसंट्रेशन लेवल है वो बचपन से ही इंक्रीज होने लगता है। तो बच्चे को भ्रामरी प्राणायाम की ट्रेनिंग आप दे सकते हैं, अनुलोम विलोम की ट्रेनिंग भी आप दे सकते हैं, मेडिटेशन मतलब सिटिंग पोस्चर की भी ट्रेनिंग आप बच्चों को दे सकते हैं, अगर वो बच्चा 8 साल से कम है, कम उम्र का है तो। और अगर 8 साल या उसके ऊपर भी है, तब तो आप उसके पूरे जो आसन के पैकेज हैं, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, वो सब आप दे सकते हैं।
ओके, थैंक यू सर। क्योंकि देखिए हम लोग इसलिए थोड़ा सा मना करते हैं क्योंकि जब आसन किया जाता है तो आपके वो हार्मोन्स पर इफेक्ट डालता है, ग्लैंड्स पर इफेक्ट आता है और उसकी वजह से कई बार बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए हम लोग आसन रिकमेंड नहीं करते हैं 8 साल से कम उम्र के बच्चों को, उसके बाद हम आसन रिकमेंड करते हैं। Sir, we have one more question. Pratibha is asking, what are the yogic practices for neurological conditions? न्यूरोलॉजिकल कंडीशन बहुत सारे फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं। अगर कुछ स्पेसिफिक होगा तो हम और स्पेसिफिक आपको गाइडेंस कर पाएंगे। अदरवाइज न्यूरोलॉजिकल चीज़ें के लिए मैं आपको बता दूं, आसन के लिए आपका जैसे भुजंग आसन है, अगर उनको बैक या फॉरवर्ड बेंडिंग या स्लिप डिस्क इस तरीके की कोई समस्या नहीं है, फिजिकली फिट हैं, तो उनको सूर्य नमस्कार का पैकेज आप दे सकते हैं। और उसमें भी आप भुजंगासन, शशांकासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, इसका अभ्यास किया जा सकता है आसन में। और प्राणायाम में आप जो है अलग अलग तरीके के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, जैसे और भी हमारे पास प्राणायाम होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। नहीं तो आप नॉर्मल वे में तो आप बिल्कुल ये जो नाड़ी शोधन है ये भी इफेक्टिव है। साथ ही साथ आपका भ्रामरी प्राणायाम तो है ही, क्योंकि आपकी न्यूरो एक्टिविटी को ही ये सीधे गवर्न कर रहा है, आप ये कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस जैसे आपकी ओम का उच्चारण है, अगर आप कर सकें तो वो भी आप कर सकते हैं, उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। और एक चीज़ मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ज़रूरी होती है, जो सभी के लिए मैं फिर से यहाँ बताऊंगा कि आप लोग को एक दिन के लिए नेचर वॉक जरूर करना चाहिए। ये जो कैंपिंग जो एक पूरा का पूरा निकल कर आया है कंसेप्ट, कैंपिंग का कंसेप्ट ही यही है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से अवे हो जाएं, कहीं जंगलों में जाकर कुछ समय के लिए अपने जो हार्मोनल डिसबैलेंस हुए हैं उसको बैलेंस करें और हर आपकी जो हार्मनी है बॉडी की वो मेंटेन है। तो इसलिए हम लोग एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए हम लोग किसी भी नेचुरल प्लेसेस पर जाते हैं, विजिट करते हैं। कभी गंगा के किनारे आप बैठ गए, कभी फॉरेस्ट में चले गए, तो थोड़ा सा जो आपका एक इन्वायरमेंट है वो चेंज होगा, उसका भी हमारे बॉडी पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। उस समय के लिए हमने मोबाइल बंद कर दिया। आजकल डिजिटल फास्टिंग और डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की काफ़ी चर्चाएं और वर्कशॉप हो रही हैं, तो वो कितना सार्थक है वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नेचर की तरफ जाएंगे एक दिन के लिए, शुरुआत एक दिन से करिए और धीरे धीरे आपको इसकी चीज़ें और रिजल्ट दिखने लगेगा। तो अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो एक प्रैक्टिस आप लोग जी एक सवाल पूछना चाह रही थी कि क्या नेचर में जाकर डिप्रेशन और एंजाइटी को भी रिड्यूस किया जा सकता है? आपने नेचर की बात कही, तो क्या ऐसा उसका कुछ ऐसा है कि हम अपने डिप्रेशन को भी कम कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि डिप्रेशन के जो डिफरेंट कॉजेज होते हैं उसमें से कई सारे कॉजेज ऐसे हैं जिसमें लोनलीनेस अगर आपकी है या किसी सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से चीज़ें हो रही हैं। एक और आसन इसमें है बटरफ्लाई, मैंने पहले भी सेशंस लिए हैं तो उसमें मैंने बताया है। तो सप्रेस्ड इमोशंस अगर आपके बाहर होंगे तो निश्चित तौर पर आपका ये जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो ठीक होगी। तो हम लोग क्या है, जैसे योगा रिट्रीट्स का सेशन हम लोग करते हैं, तो जिसमें हम माउंटेन्स में जाते हैं, पहाड़ों पर चले गए या कहीं नेचुरल प्लेसेस पे चले गए और वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज, ताकि माइंड को आपको खाली नहीं छोड़ना है, कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे नेचर से कनेक्ट होगा और निश्चित तौर पर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। डिप्रेशन में भी हेल्प मिलती है। काफ़ी केसेस हमारे पास आए हुए हैं और इंडिया से नहीं बाहर से लोग आए हुए हैं और जिनको रिलैक्स मिला है, आराम मिला है। तो हार्मोन में भी, हार्मोन लेवल पे भी कुछ चेंज आता होगा, जैसे कॉर्टिसोल वगैरह, हार्मोनल लेवल जो पर स्ट्रेस चेंज हार्मोन आता है वो कम होते होंगे और हैप्पीनेस जी। हार्मोन बढ़ते होंगे। मींस एनवायरनमेंट के साथ अगर हम अपना समय व्यतीत करते हैं तो हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल होते ही हैं, क्योंकि आप अगर, जैसे मैंने पहले ही ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस आपको करवाई कि जब आप ऑब्जर्व करने लगते हैं अपने आप को तो वहीं से आपकी 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जो आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, वो चीज़ें हट जाती हैं।
आप सिर्फ एक तरफ सेंटर्ड हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि जब आप फ्रेश इन्वायरमेंट में जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स नहीं हैं, जहाँ की एयर पॉल्यूटेड नहीं है, तो या वहाँ की अपनी एक वाइब्रेशंस हैं, एक एनर्जी फील्ड है, जब आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो आपकी बॉडी में ऑल ऑफ सडन कई सारे चेंजेस होने लगते हैं, जो कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। Thank you so much, sir. We are 10 minutes past the desired time. I know there are more queries, and these queries can be sent by email to aceph@lko.met.edu, and these can be answered accordingly. Now over to Antavya Singh. Thank you, sir. Now I would like to request Professor Dr. Manju Agarwal ma'am to kindly address the gathering. I think Dr. Ritu is there. If she is there, I would request her to extend a vote of thanks. If she is not there, then I will do that. Thank you so much, ma'am. I'm here, and it was wonderful hearing Dr. Naveen Pandey, sir. All the way I was thinking, I think sir is there. Screen can be unshared. Yeah. Thank you so much, sir. It was wonderful hearing, and formal vote of thanks will be given by Antavya. But all the way I was thinking, and I've been kept on thinking, what is the motivation behind getting motivated every day to do the yoga and think about ourselves? Because we after these sessions, no, we get so motivated to do the things, but as the passage of the days happen, we slowly the balloon of inflated balloon gets diffused, and again we are stick and glued to the digital world and digital technologies. So it is very challenging. The one thing which is becoming a boon is becoming creating a lot of problem for us. So नवीन सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को बताया। हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ इतना ही चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, अपने क्लासरूम्स में ये चैलेंज फेस कर रहे हैं, और हम ऐसे टीचर भी इससे इतने ज़्यादा ग्लूड हैं कि मैसेज कौन सा आया, कौन सा ईमेल आया, वी हैव टू रिप्लाई। इतना प्रेशर इतना ज़्यादा है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी आंखें और हम बस बैठे हैं, यही यूज़ हो जा रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा। सो योर टेक्निक्स जो एक ने बोला था योग जो आपने बताए बैठे बैठे कर लेने का, ये आई थिंक ये वंडरफुल रिस्पाइट है इस सिस्टम में जो हम लोग जी रहे हैं। और आप कंप्यूटर साइंस के हैं और उसके ऊपर से आपने ये टॉपिक चूज किया, ये भी कहीं ना कहीं आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि आपकी कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से आपने इसको लिया एंड यू आर डिराइविंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो आई थिंक दैट इज द मोटिवेशन विच आई एम टेकिंग एंड आई होप माय पार्टिसिपेंट्स आर आल्सो बी टेकिंग, कि योग और साधना और ये सब हमारे जो इंडियन सनातन सिस्टम है, ये सब हमको बहुत आगे ले जाएंगे इस डिजिटल वर्ल्ड में, to live happily and peacefully. So thank you so much, sir. And I also thank Priyank Singhal sir. आप continuously इस program को कराने के लिए, करने के लिए, you have been motivating us, and you have actually, done a very good role as a member of ACPH. We want this type of active members because we really want to grow with you all. ACPH will flourish when you have that, we have members like you. So thank you so much, sir, and thank you so much the participants. I would like to add a few words. Yes. Dr. Naveen Pandey, you said that you had some physical problems, but you are glowing so much. So it shows the impact of your yoga and your commitment to your pranayam, and not only that you are doing it for yourself. I think when we teach it to others, जब हम ये दूसरों को कोई भी अपनी कला सिखाते हैं, तो शायद हम बहुत ज्यादा लाभान्वित होते हैं, और यही टीचर्स का हम लोगों का थोड़ा काम रहता है। तो सर, मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि लग रहा है कि आप बहुत योग में काफी आगे हैं, आपकी स्किन, आपके ग्लो से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, और मोटिवेटेड हूँ कि आप कभी आप योगा रिट्रीट करें तो मुझे जरूर याद करें,
और मैं कोशिश करूंगी कि अगर इस स्थिति में हुई तो मैं जरूर चलूंगी वहां आपके साथ. Ma'am, I would like to add one thing that he has been imparting yoga trainers training Okay. to number of batches. He has gone to Thailand more than 3-4 times, and he has trained so many Okay. people, and they are now working as yoga trainers. लेकिन अब इस डिजिटल वर्ल्ड से निकलकर सर को हमको लाइव यहाँ एमिटी कैंपस बुलाना पड़ेगा. I think हम लोग we can forward this the people who are क्या ऑनलाइन भी पॉसिबल है सर? Yes, ma'am, it's possible. We can online. डॉक्टर प्रियंक, अगर आप इसको सही सोचो, हम लोग भी वो करें तो हम लोग एक ऑनलाइन योगा ट्रेनिंग कोर्स भी फ्लोट कर सकते हैं फॉर पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस. सो टू बिकम द ट्रेनर्स, बट पहले तो उन्हें अपनी ट्रेनिंग करनी होगी, बाद में वो ट्रेनर का कोर्स करेंगे ना. Yes, definitely. We can go for offline session. A 1 day or 2 day workshop can be organized on campus at MIT Lucknow. We can discuss and work on this plan. In times to come, we can go for it. Sure. और ये कितने दिन का आपका प्रोग्राम होता है? मैम, ये हम लोग 5 days अगर ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं. 5 days. 5 days for learning, not as a trainer. हाँ, not as a trainer. For trainer, तो फिर लंबा आपको चाहिए. At least 1 month. Yeah. Yes. बिल्कुल, हम लोग 5 days 10 days का एक प्रोग्राम शुरू करवाते हैं. बहुत सारे बच्चे में भी इंटरेस्टेड, adults में भी इंटरेस्टेड. क्यों अंतव्या का मुंह ऐसे हिल रहा है? She is looking happy. Thank you, Antavya. Yes, ma'am, I am interested. Oh, great. So we'll plan it, Antavya. तुम मोटिवेट करोगे, हम लोग को भूलने नहीं दोगी ये बात. Bilkul, yes, ma'am, sure, I will do it. Okay. Before people are leaving, I think you have posted the feedback form. Good. एक feedback form डाल दिया है आपने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, please Yes, give. ma'am, yes. Those who give the feedback will also get a certificate. Now, Antavya, we can proceed for the formal vote of thanks. Thank you, teachers. Thank you, sir. On behalf of our honorable founder, President Dr. Ashok K. Chauhan, sir, Chancellor Rajasthan and Haryana University and Chairman Lucknow campus, our beloved Dr. Aseem Chauhan, sir, Honorable Vice Chancellor Professor Dr. Balvinder Shukla, ma'am, our respected very own Deputy Pro Vice Chancellor, Wing Commander Dr. Anil Kumar Tiwari, sir, Deans, HOIs and HODs of the university. I extend my heartfelt gratitude to the speaker of the webinar, Dr. Naveen Pandey, sir, and the moderator of the session, Dr. Priyank Singhal, sir, for organizing this webinar and sparing their valuable time for the cause of spreading positivity and happiness. I would like to thank our admirable Professor Dr. Manju Agarwal, ma'am, Director of ACEPH, and Dr. Ritu Tripathi Chakravarti, ma'am, for helping of organizing this webinar. We are truly inspired by your session, sir. I am sure that the audience has benefited a lot from your valuable inputs. At least I have. I would like to extend my vote of thanks to the entire technical team without whom this session could not have been possible, all the faculty and students for joining this inspirational session. Thank you so much, everyone. Have a lovely day. Thank you, everyone. Thank you, Antavya. Thank you, Dr. Priyank. It was a wonderful session. And we'll continue this. Thank you, Antavya and Jaya, for working behind the stage and managing so well. Thank you so much. Thank you, ma'am. Jaya is there. I can see her. Thank you very much.